Hello, Assalamu alaikum students. I hope that you all are fine. In today's class, we are going to read our chapter number 3, unit number 2, that is Black Beauty. Before starting the chapter, let us discuss the title. Well, in this chapter, the young horse, Black Beauty, tells us about his early life. Or you can say that Black Beauty is the hero and narrator of our story. He is a baby at that time and does not have any name yet. But for our purpose, we call him Black Beauty because of his color black. Before starting reading, let's discuss the introduction of the writer. Well, this expert is taken from the novel Black Beauty by Anna Sewell, 1820 till 1878. The story is about a horse, and you will see from this short piece that the story is told by a horse. This particular passage deals with the question of blood sport, which is hunting wild animals as a sport. Even today, this is a subject on which the public is much divided. यानी ये पीस ऑफ राइटिंग लिया गया है नॉवेल ब्लैक ब्यूटी से, जो कि लिखा था एना सोवेल ने. बेसिकली ये स्टोरी जो है वो एक हॉर्स अपनी ज़बानी सुना रहा है, यानी नरेट कर रहा है. बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग, let me tell you the difficult words and their meaning. So in stanza number 1, we have the word circumstances, means halat ya situation. The second word is frost, means thund. The third one is mist. Mist कहते हैं moist air meets sudden cooling, यानी सर्दी की वजह से पानी जो है वो उसका धुआं बन जाना. नेक्स्ट वी हैव वुड्स. वुड्स यहाँ पर जो है वो लकड़ी को नहीं कह रहे, बल्कि WOODS वुड्स मीन यहाँ पर जंगल है. मीडोस. मीडोस कहते हैं फील्ड को, खुले मैदान को. कोल्ड्स. कोल्ड्स कहते हैं जवान घोड़े को. क्राई. क्राई मीन्स रोना. प्रिकल्ड. प्रिकल कहते हैं अपने कानों को स्ट्रेट करके. स्टैंड इरेक्ट व्हेन अलर्ट, ठीक है ना, जैसे बिल्ली करती है कोई आवाज़ सुनाई देने पर अपने कान खड़े कर लेना. हैज. बाड़े को कहते हैं. Horns means hunting dogs. Now let us start reading. Before I was 2 years old, जब मैं 2 साल का था, a circumstance happened which I never forgotten. एक ऐसा हादसा पेश आया जो मैं आज तक नहीं भूला. It was early in the spring. बहार के मौसम में. There had been a little frost in the night. जब रातों को थोड़ी ठंड हुआ करती थी. And a light mist
still hung over the woods and meadows. और रात की ठंडक सुबह तक धुआं बनकर जंगल के अंदर या पहाड़ियों पर मौजूद थी, फील्ड्स के अंदर मौजूद थी. I and the other colts were feeding at the lower part of the field. मैं और जवान घोड़े खाना खा रहे थे फील्ड के लोअर पार्ट में. When I heard, quite in the distance, what sounded like the cry of dogs. जब हमने सुना कि दूर कहीं से बहुत सारे डॉग्स की रोने या भौंकने की आवाज़ आ रही है. The oldest of the colts raised his head, prickled up his ears and said, जो हम घोड़ों में सबसे बूढ़ा था उसने अपने सर को उठाकर अपने कानों को जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ मोड़ा और कहा, There are the horns. वहाँ पर शिकारी कुत्ते हैं. And immediately center off, followed by the rest of us. और हम सब पहाड़ के ऊपर चढ़कर जल्दी जल्दी भागने लगे. To the upper part of the field, where we could look over the hedges and see several fields beyond. जहाँ से हम दूर तक का नज़ारा देख सकते थे. My mother and an old riding horse of our master. मेरी माँ यानी मेरी मदर और ओल्ड राइडिंग हॉर्स जो मास्टर का पुराना घोड़ा था वो were also standing near and seemed to know all about it. ऐसा लग रहा था कि वो इस बारे में पहले से जानते हैं. They have found a hare. उन्हें एक खरगोश मिला. Said my mother. उनको कोई खरगोश मिला है, मेरी मदर ने कहा. And if they come this way, we shall see the hunt. और अगर वो इस तरफ आए तो हमें भी शिकार देखने का मौका मिलेगा. And soon the dogs were all tearing down the fields of young wheat next to ours. और वहाँ से थोड़ी ही देर में शिकारी कुत्ते भागते हुए फील्ड को तबाह करते हुए हमारे करीब से गुजरे. I never heard such a noise as they made. मैंने कभी ऐसी आवाज़ नहीं या शोर शराबा नहीं सुना था. They did not bark. ना ही वो भौंक रहे थे. Nor howl. ना ही चीख रहे थे. Nor whine. ना ही रोते हुए फरियाद कर रहे थे. But what he did, but kept on a yo at the top of their voice. After them come a number of men on horseback. उन्हीं के पीछे बहुत सारे आदमी घोड़ों पे सवार आए. Some of them in green coats. कुछ ने ग्रीन कोट पहना हुआ था. All galloping as fast as they could. और वो घोड़ों पर तेज रफ्तार में भाग रहे थे. The old horse snorted and looked eagerly after them. बूढ़ा घोड़ा मास्टर का उनको गुर्राते हुए बेताबी से देख रहा था. And we young colts wanted to be galloping with them. हम भी उनके साथ तेज रफ्तार में भागते हुए आगे बढ़े. But they were soon away into the fields lower down. पर वो फील्ड के निचले हिस्से में चले गए यानी लोअर जगह पर चले गए जो उनकी ऊंचाई से उनको नहीं दिख पा रही थी. Here it seemed as if they had come to a stand. The dog left off barking and ran about everywhere with their nose to the ground. Dogs ने बार्क करना बंद कर दिया था यानी भौंकना बंद कर दिया था और वो इधर उधर अपनी नोज़ को ज़मीन पर रगड़ते हुए चलना शुरू कर दिया. They have lost the scent. वो जो हेयर की खुशबू थी वो उनसे मिस हो गई. Said the old horse.
बूढ़े घोड़े ने कहा। Perhaps the hare will get off. जो खरगोश है वो लगता है भाग गया। What hare? I said. मैंने कहा hare क्या होता है? Oh dear, I don't know what hare. Like enough, it may be one of our own hare out of the woods. पता नहीं वो खरगोश कौन था। हो सकता है कि वो खरगोश हमारे जंगल का ही हो। Any hare they can find will do for the dogs and men to run after. And before long the dogs began their yo-yo again. Back they came all together at full speed. थोड़ी ही देर हुई थी कि वो डॉग्स वापस से फुल स्पीड में उन्हें भागना शुरू कर दिया। Making straight for our meadow at the part where the high bank and hedges over the brook. और वो डॉग्स स्ट्रेट भागते हुए मीडो यानी फील्ड्स को क्रॉस करते हुए हाई बैंक की दूसरी तरफ चले गए। हाई बैंक कहते हैं दरिया को, ठीक है, रिवर को या चश्मे को कहते हैं। उसको क्रॉस करते हुए उसकी दूसरी तरफ चले गए। Now we shall see the hare, said my mother. मेरी मदर ने कहा कि अब हम उस खरगोश को देख सकते हैं। And just then a hare, wild with fright, rushed by and made for the woods. अब वो क्या देखते हैं कि खरगोश जो है वो दहशत के मारे, डर के मारे दौड़ता हुआ जंगल की तरफ भाग रहा है। On come the dogs. They burst over the bank, leaped the stream and came dashing across the field, followed by the huntsman. और उन डॉग्स के पीछे भागते हुए, जज्बाती तौर पर भागते हुए, जो चश्मा था, ब्रोक था, उसको क्रॉस करते हुए, स्ट्रीम नदी को क्रॉस करते हुए, छलांग लगाते हुए एक डैशिंग अट्रैक्टिव सा हंटमैन दूसरे शिकारियों के साथ गुजरा। 6 or 8 men leaped their horses clean over close upon the dogs. 6 से 8 साफ घोड़ों ने डॉग्स के साथ भागते हुए उस नदी में छलांग लगाई। The hare tried to get through the fence. जो खरगोश है वो फेंस के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, but it was too thick and she turned sharp around to make for the road. But it was too late. पर बहुत देर हो चुकी थी, अब उसके खरगोश के भागने का कोई फ़ायदा नहीं था। The dogs were upon her with their wild cries. जो वहाँ के कुत्ते थे वो उसके पास पहुँच गए थे और बुलंद आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से उन्हें चिल्लाना शुरू कर दिया था। We heard one strike and that was the end of her. हमने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी और उसके बाद खामोशी हो गई। मीन्स वो जो खरगोश था उसका एंड हो गया। One of the huntsmen rode up and whipped off the dogs, who would soon have torn her to pieces. जो के उसको कुतर रहे थे, यानी चीड़ फाड़ कर रहे थे किसको, खरगोश को। He held up the rabbit and all the gentlemen seemed very pleased. और वो जो है वो उस खरगोश को उठाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, यानी खरगोश का शिकार कर कर या उसको मारकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, उसका हंट कर कर। As for me, I was astonished. मैं ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। That I did not at first see what was going on by brook. But when I did look, there was a sad sight. पहले मैंने नहीं देखा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है या मुझे समझ नहीं आया था, पर जब मैंने देखा तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उदास मंजर था। 2 fine horses were down. 2 अच्छे घोड़े, तंदुरुस्त घोड़े गिर चुके थे। 1 was struggling in the stream. एक जो है वो नदी के अंदर फंस गया था। And the other was groaning on the grass. और जो दूसरा था वो
दर्द के मारे आहें भर रहा था, यानी तकलीफ से वो किर्रा रहा था। One of the riders was getting out of the water covered with mud. जो एक राइडर था, हंट्समैन था, वो मट्टी में भर गया था, मट्टी में यानी गिर गया था, उस पर मट्टी लग गई थी। The other lay quite still. और जो दूसरा था वो गिर गया था खामोश। His neck is broken, said my mother. मेरी मदर ने कहा कि जो हंट्समैन है उसकी गर्दन टूट चुकी है। And serve him right too, said one of the colt. पास खड़े दूसरे नौजवान घोड़े ने कहा, उसके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। I thought the same. मैं भी यही सोच रहा था कि उसके साथ बिल्कुल सही हुआ, जैसे उसने करा उसको उसका अंजाम मिला। But my mother did not join with us. पर मेरी माँ ने हमें ज्वाइन नहीं करा, यानी कि उसके अकॉर्डिंग उसके साथ सही नहीं हुआ। Well, no, she said. उसने कहा नहीं। You must not say that. तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। But though I am an old horse and have seen and heard a great deal, I never yet could make out when men are so fond of these sports. They often hurt themselves and often spoil good horses and tear up the fields. And for a hare or a fox or a stag, they could get more easily some other way, but we are only horses and don't know. उस घोड़े की माँ ने कहा कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैंने बहुत दुनिया देख ली है, मैंने बहुत कुछ सुना है, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि ये शौक़ जो हंट का शौक़ है वो मैन को क्यों है, और इस खेल में, इस शौक़ में वो अपने अच्छे से अच्छे घोड़े को स्पॉइल कर देते हैं, और वो इस शिकार के शौक़ में खेतों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जबकि जो शिकार होता है, लोमड़ी, खरगोश या बारहसिंगा, वो क्या है, अपनी जान बचाकर किसी भी तरीके से वहाँ पर भाग जाते हैं। पर हम बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, पर हम जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ घोड़े हैं और हम अपनी मास्टर की कमांड को फॉलो करते हैं, और इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। I hope that up till here is all clear to you. Let me revise it once again for you. That what is the overview of this story? Well, in this story the horse is narrating his life experience, जो उसके ज़िंदगी का एक हादसा था वो उसको अपनी ज़बानी इस स्टोरी के अंदर, शिकार का जो हादसा उसने देखा था वो इस स्टोरी के अंदर जो है वो नरेट कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है या बता रहा है उसके बारे में। I hope that up till here it's all clear to you all, but if you have any query regarding this chapter, you can comment me. See you in the next class. Allah Hafiz.